इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कल से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज शुरू होनी है। कोच राहुल द्रविड़ होंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे वहां का रुख करते हैं। Your question on chat. Gautam Bhattacharya, you can go ahead with your question. Okay, hi. Thanks, Anand. Congratulations, Rahul. This is Gautam of Gulf News. A little generic question to you. I mean, over the years, we have seen that as a coach, you are more of a builder and think long term. Now, here we have got a situation where the India coach and the Indian captain are expected to win every match that they play. So how do you plan to strike the balance or adjust your vision if need be? Yeah, you have to strike that balance. Of course, we want to win every single game that we play for India, but we cannot not think about the longer term picture as well. I mean, just to answer your earlier question, even in terms of the bubble fatigue or the situation we are in now, we will think about the players' long-term careers and futures as well, and keep that in mind, and not prioritize that their well-being at any stage over sort of short-term results. So it's a combination of both. In any situation, yes, you have to have a combination of both. You have to win now, but you also have to keep one eye to the future. You have to plan and prepare for you spoke about the big tournaments. We have them coming up, in the next couple of years, and we have to think about those things as well. So, yeah, it's a balance that you need to strike, and that's happens in the sort of day-to-day function. It's hard to sort of put down how exactly you will do it, but yeah, we'll put things in mind, and certainly one of the goals is it'll never go away. I mean, the thinking long term about what's in the future certainly is my job as a coach. And that won't change irrespective of whichever team you're kind of coaching. Guys, we are just a bit crunch on time. We'll take a few from the regional media. Sunandan Lele followed by Kuntal Chakravarti. Sunandan sir, you can go ahead with your question. दोनों के लिए एक एक सवाल है। राहुल, प्रोफेसर द्रविड़, वेलकम टू द पार्टी। आप पहले जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज में पढ़ाते थे, अब आप मैनेजमेंट सिखाने वाले हो, क्या फर्क होगा आपके कोचिंग में? और रोहित के लिए सवाल है कि कोच का वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा या हजम करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको? मतलब आई मीन एवरी टाइम कहीं पे भी आप कोचिंग करते हैं तो आपको ऑब्वियसली आप सेम तरीके से कोचिंग नहीं कर सकते, आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है। आई मीन, यू कांट, certain principles of coaching will never change, they're always the same, but of course the teams that you coach, they come with unique set of challenges, unique set of requirements. You can't say that everything I did in under 19 level I will do here. I mean, that would not be the way I would go about things. So yeah, मेरे लिए भी ये जो टाइम है थोड़ा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न, गेट टू नो द प्लेयर्स, उनको समझने में उनके लिए क्या चाहिए। एनी टाइम यू कोच, आई थिंक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सपोर्ट स्टाफ इज टू मोल्ड योरसेल्फ टू बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर। आई थिंक दैट्स द फिलॉसफी, वो मेरी फिलॉसफी है। राहुल भाई, कुंतल, मेरा सवाल ये कि ऑफ लेट बहुत सारे बातें हुई है कि वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर, तो क्या एग्जैक्ट प्लान है आपका वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर कि ऐसा ना हो कि बड़े टूर्नामेंट के बाद कहा जाता है कि कई बार कि हाँ ज्यादा आईपीएल मैचेस खेला है, ऑफ लेट ये बातें हुई है, तो क्या प्लान है आपका वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर? रोहित से भी सेम सवाल है। देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट तो मतलब एक जरूरी हिस्सा ही हो गया है क्रिकेट का। हम इतने क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम लोगों को वर्कलोड मैनेज करना ही पड़ेगा। जैसे हम फुटबॉल में भी देखते हैं, जब सीजन्स इतने लंबे होते हैं तो जो बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं वो भी हर मैच नहीं खेल पाते। तो ये एक मतलब अगर हम साल भर में खेल रहे हैं तो वो वर्कलोड हमको ज़रूर उनका मैनेज करना पड़ेगा। कि हम इन द टीम मैनेज करते हैं या उनको ब्रेक दे के मैनेज करते हैं, वो हर एक केस अलग अलग होगा। पर जैसे मैंने पहले कहा, प्लेयर्स की जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। उसमें वी विल वर्क इन एंड अराउंड दैट। वी विल ऑफ कोर्स, द टीम विल आल्सो टेक प्रायोरिटी। सो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू डू दिस बैलेंसिंग एक्ट एट अ टाइम लाइक दिस, and work towards getting everyone sort of fit and ready for obviously the big tournaments. जी बिल्कुल, जैसे राहुल भाई ने बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जितना
मैचेस खेलते हैं उसके बाद बॉडी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे लड़के जो है वो मशीन्स नहीं है जस्ट कि आज आ जाए ग्राउंड पे और खेलते रहे बैक टू बैक। तो कुछ टाइम ऑफ लेना ज़रूरी है सारे प्लेयरों को जो लंबे समय से खेल रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी है जो हमने अभी इस सीरीज़ में किया है। काफ़ी लड़कों को रेस्ट दिया है, टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी लड़के रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आगे जो क्रिकेट आ रहा है, हमें वी वांट ऑल आवर बॉयज टू बी in a good mental state and fresh for the challenge ahead. So it is very simple. We just have to monitor it every series that we play and see what we can do after that. And just to add to Rohit, I mean, it's not only us who's doing that. I mean, if you see Kane Williamson is obviously not going to be playing this T20 series. So I think every country is recognizing the importance की इस चीज़ों का, और सब लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लोगों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चैलेंज है। Final 2 questions. Rohit Juglan, you can go ahead with the question followed by. तो नए खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज में अच्छा मौका होगा। हमें संतुलित टीम के साथ आने वाले क्रिकेट को खेलना है। राहुल द्रविड़ जो कि नए कोच हैं, और कल से T20 सीरीज शुरू हो रही है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते